اسٹار دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام. میرے عزیزوں، میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں جو کہ ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے ہے. آج پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماؤں کی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے. اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر، اور جب جوان ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنی ماؤں کی یاد رہتی ہے. اگر ہم میریڈ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا ہے. اور آج میں نے اسٹوڈیو میں اپنے ساتھ اور بھی بہنوں کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر ماؤں کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت کر سکیں. میں آپ کو سب سے پہلے اپنی بہنوں کا تعارف کرواتی ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ خداوند کی خادمہ مسز شمیم ناز ہیں، جن کو خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں سسٹر یماما، جو کہ ایک بہت ہی اچھی پرستار ہیں اور پرستش کے وسیلہ سے خداوند اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو بیٹی ہیں وہ مبشرہ سونیا ہیں، جو کہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور مبشرہ صاحبہ کو خداوند چرچ میں اور پورے پاکستان میں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ خداوند کی بہت ہی بہترین خادمہ اور خداوند کی بیٹی مسز شان موجود ہیں، جن کو خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اور میری بہن جو ہے وومن منسٹری میں بھی بہت سرگرم ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ گھر کو بھی دیکھتی ہیں، اور جہاں ان کو خداوند کی خدمت کا موقع ملے یہ خداوند کی خدمت بھرپور طریقے سے سر انجام دیتی ہیں. میں خداوند کی شکر گزار ہوں اپنی ان سب بہنوں کے لیے جن کو خدا جگہ بجگہ کثرت سے استعمال کر رہا ہے. سب سے پہلے میں اپنی بہن شمیم ناز کی طرف آؤں گی، کیونکہ خداوند اپنی بہن کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ماں کا جو ہے وہ کیا کردار ہے، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی ماں کا کیا کردار ہے. مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں سب کو سلام. خداوند کا شکر کرتی ہوں آج بہن کے وسیلہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم اپنے اپنے خیالات کو بیان کریں کہ کس طرح ہماری زندگی میں ہماری ماؤں نے اپنے کردار کو ادا کیا. میں اپنی ماں کے لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح میری تربیت کی. اور ہم بہت چھوٹے ہی تھے جب میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن میری ماں نے اسی طور پر ہمیں سنبھالا، پالا اور تربیت کی ہماری کہ ہمیں اپنے باپ کی بھی کمی محسوس نہ ہونے دی. اور ان کی تربیت ہی ہے جو آج میں اس جگہ پر بیٹھی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تمام بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہیں یہ ان کی بھی ماؤں کی کاوش ہے، ان کی تربیت ہے. ورنہ ہر ایک کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ وہ خداوند کے گھر میں کام کریں، اس کی خدمت کریں اور اس طرح ان کو عزت افزائی دی جائے اور وومن منسٹری میں وہ پہنچ پائیں. کیونکہ جو اچھی تربیت رکھتی ہیں بیٹیاں وہی اس مقام تک پہنچتی ہیں. اور خداوند سے میری ریکویسٹ ہے کہ آگے جو ہماری بیٹیاں ہیں اور مسیحی بیٹیاں ہیں وہ بھی اسی طرح خداوند میں مسرور رہیں اور خداوند کے کام کریں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی بھی اسی طرح عزت افزائی ہو، وہ بھی عورتوں میں معتبر جانی جائیں. کلام مقدس ہی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے روت کے بارے میں. وہ کتنی بہترین بیٹی تھی جس نے سسرال میں جا کر بھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا، اور پھر اس نے اپنی ساس کی بڑی وفاداری سے خدمت کی، کیونکہ ان کی جو تربیت تھی ان کے والد کے گھر سے تو وہ ان کی نظر آئی اپنے سسرال میں. اور یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسوب ہوا، کیونکہ انہی کی نسل سے داؤد اور پھر داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. تو ہماری ماں جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑا اہم رول کرتی ہے.
हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरह तरबियत करें ताकि हमारी बेटियां भी बड़ी बाकिरदार हों, खुदावन में बिजी रहें, उसी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें भी एक अजीम माँ माना जाए। और हमें भी अपनी बेटियों को उसी राह पर तरबियत करनी चाहिए जहाँ उन्हें जाना है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, हम जिस तरह के खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में भी दर्ज है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो तरबियत चाहे हम छड़ी के साथ करें या प्यार और मोहब्बत से करें तब भी करें, लेकिन हमें अपने बच्चों की तरबियत का खास ख्याल रखना होता है। और खास तौर पर जो है वो हमारा जो अपना करैक्टर है माँ होते हुए वो हमारे बच्चों के सामने रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा अपना करैक्टर अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी बेटियों पर अपने बेटों पर अच्छा तासुर नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ जो हमारी अगली गेस्ट हैं वो सिस्टर यमाना हैं, जो कि एक मदर तो नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छी बेटी हैं और खुदावन इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि एक बेटी होते हुए इनकी जिंदगी में माँ का क्या किरदार है। मेरी तरफ से मसीह में आप सबको सलाम। मैं अपनी माँ के बारे में इतना कहना चाहूंगी कि अगर मेरी माँ का ये किरदार मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मैं अभी इस लेवल पे ना होती। और खुदा की बहुत शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे एक नेक और तरबियत देने वाली माँ अता फरमाई। और मैं कहना चाहूंगी कि खुदावन का बहुत करम है कि हर जगह साथ लेकर चलने वाली मेरी मामा एक बाइबल टीचर है और बाइबल टीचर होने के साथ साथ वो एक खादमा भी हैं और एक पास्टर की वाइफ भी हैं। तो जहाँ मेरे पापा जाते हैं मेरी मामा साथ खिदमत के लिए जाती हैं और खिदमत के साथ साथ वो हमें भी साथ साथ रखती हैं। और अब तो मेरी शादी हो चुकी है तो अब मुझे खुदावन के फजल से आगे भी एक अच्छी खातून का किरदार जो है वो देखने को मिला कि जिस फैमिली में मैं गई वहाँ भी एक खातून की जो तरबियत थी और सारी वो कैरेक्टर्स थे वो उनके बच्चों में मुझे नजर आ रहे हैं। और उसके सबब से आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ कि अगर उनकी तरबियत में कोई कमी होती तो शायद मैं आज यहाँ मौजूद नहीं होती। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की और उनके बेटे ने मेरा साथ दिया तो आज मैं शायद यहाँ मौजूद हूँ। तो ये सारा क्रेडिट एक माँ को ही जाता है। बिल्कुल जी, एक जो बेहतरीन माँ होती है वो एक बेहतरीन नस्ल और एक बेहतरीन कौम को पैदा करती है। खुदा उनका बेइंतहा शुक्र हो। मैं अब सिस्टर शान की तरफ आऊंगी। सिस्टर शान, आपकी क्या राय है एक माँ के बारे में? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम। माँ की तो जितनी सिस्टर तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि माँ एक हस्ती ऐसी है कि वो कभी भी चाहे हम भी एक माँ, मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त जो है ना हर मुश्किल में माँ याद आती है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि खुदावन ने हमें बहुत अच्छा माँ बाप दिया जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की और हमें खुदावन की राह पर चलाया। और हम जो है आज जब चर्च में आते हैं खिदमत में भरते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि जो है वो हम जो कुछ भी हैं आज हम अपनी माँ की तरबियत की वजह से हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की थी कि जब भी चर्च का टाइम होता था तो वो हमें टाइम से उठाती थी और वो बोलती थी कि चर्च का जो है टाइम हो चुका है। तो वही आगे भी हम खुदावन के आगे यही दुआ करते हैं कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह जो है तरबियत दें ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो चर्च को दें। और मैं अपनी बहनों को भी यही कहूंगी कि जितनी भी हमारी बेटियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है खुदावन को टाइम दें, क्योंकि हम खुदावन के बगैर कुछ भी नहीं है। और सिस्टर बाकी मेरी ये है कि जिनकी मेरी माँ नहीं है अब हमारे साथ, लेकिन उनका प्यार उनकी बातें आज भी हमारे साथ हैं, हमें याद आती हैं। जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी तरबियत दी थी, हमें आज भी उनकी तरबियत याद है। और आगे भी हमारा यही मकसद है कि हम अपने बच्चों को भी जैसे हमारी माँ ने हमारी तरबियत की है ऐसे ही मेरी भी कोशिश है कि मैं भी अपने बच्चों की ऐसे ही तरबियत करूं ताकि वो सबसे ज्यादा मसीह में बढ़े।
और मैं चाहती हूँ कि जिनकी माएँ नहीं हैं वो अपनी माओ से, अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करें, ताकि ये खुदावंद के 10 हुक्मों में भी ये हमें दिया गया है कि माँ बाप की इज्जत करो। जब हम माँ बाप को खो देते हैं तो फिर हमें याद आता है कि हमें माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करना था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जिन जिन के पास माँ बाप है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें टाइम दे, बहुत सारा प्यार करें, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है, और इस अहमियत की पहचान हमें तभी होती है जब हमारे माँ बाप जो है वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में जब हमारी माएँ होती हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए, और बाज़ औक़ात हम पूरी जिंदगी अपनी मोहब्बत का, अपने माँ बाप के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, और कभी हमने अपनी माँ को और बाप को कभी आई लव यू नहीं कहा होता। तो ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि जब हम उनको आई लव यू कहते हैं या उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उनको दिली सुकून फील होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के जरिए हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से नहीं करते तो फिर हमारे बच्चे भटक जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में वो बातें ही नहीं होती, वो मोहब्बत ही नहीं भरी होती जो कि कलाम की मोहब्बत होती है। और इस वजह से वो कभी अपने माँ बाप को आई लव यू या ये नहीं कहते कि माँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या बाप से कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और इजहारे ख्याल उसी वक्त होता है जब आपके दिल में मोहब्बत भरी हुई होती है। और एक माँ बाप को जो एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? एक माँ बाप को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उनसे इंस्पायर हो, और अपनी जिंदगियों को जो है वो अपने माँ बाप को देखते हुए कि वो किस तरह खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी वैसे ही अपनी जिंदगियों को गुजारें। अब हमारे साथ जो हमारी नेक्स्ट मेहमान है खुदावंद की बहुत ही प्यारी खादमा मुबशरा सोनिया है, जिनको खुदावंद कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी बहन सोनिया, आप क्या राय रखती हैं एक माँ के बारे में? क्योंकि आप अभी माँ तो नहीं है लेकिन एक प्यारी बेटी जरूर है जो कि अपनी माँ की बहुत केयर करती है। वैसे में आप सबकी सलामती हो, और जितने भी लोग इस टाइम हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जैसे कि आज मदर्स डे है तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और बड़ी खूबसूरत आपने जैसे अभी अभी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को जो है आई लव यू कहने से शर्माते हैं। लाइक लोगों को तो बहुत ज्यादा कह देते हैं लेकिन वो समझते हैं कि आई लव यू सिर्फ लाइफ पार्टनर, बिल्कुल, या अपने फ्रेंड्स को कहना। लेकिन आई लव यू का मतलब यह है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। और हकीकी जो मोहब्बत देखी जाए तो मेरे ख्याल में जो हकीकी मोहब्बत है वो माँ की है, जो पेरेंट्स है। अब जब बच्चा एक पैदा होता है, वो जब ग्रोइंग एज में जाता है तो सबसे पहले वो माँ कहना सीखता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले वो माँ कहता है, और जैसे ही बच्चा वो अपनी तरबियत जब उसकी माँ कर रही होती है, मुझे जो मेरी वालदा साहिबा बड़ी वो सिंपल लेडी हैं, और जब मैं स्कूल जाती थी और जब मैं अपनी एज को देखती हूँ कि जब मैं मसीह में बढ़ रही थी तो इसमें मेरी माँ का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। जितनी भी माएँ इस टाइम देख रही हैं और जितनी भी बेटी हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरी मदर है, बचपन में जब आपको पता है कि स्कूल जाते नहीं है बच्चे, बहुत तंग करते हैं, तो दिल नहीं करता स्कूल जाने का, और माएँ जो है वो बहुत सख्ती के साथ बच्चों को लेके जाती हैं कि नहीं आपको स्कूल जाना है। तो जब वालदा मेरी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मैं देखती हूँ उनकी स्ट्रगल को। बहुत सारी माएँ जो खुद एजुकेशन उन्होंने हासिल नहीं की लेकिन उनके बच्चे जो है उन्होंने आला तालीम को हासिल किया हुआ है। तो जैसे खुदा की खादमा मिसेस आसिया आशर ने कहा कि जो है माँ एक रोल मॉडल है, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी माएँ हैं जो रोल मॉडल हैं, तो एजुकेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करती हैं। और जितने भी नौजवान इस टाइम देख रहे हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि माँ जो है जब हमारे पास होती है तब तो कदर नहीं होती, लेकिन जब चली जाती है तो हमें नसीहतें याद आती हैं। और आजकल बच्चों ने एक नया जो है वो लफ्ज सीखा हुआ है कि माँ तेनू की पता। हाँ,
आजकल की दुनिया में ये आजकल तो मीडिया का दौर है, आजकल ये है तो वो है। अब मैं फेसबुक पे एक पिक्चर देख रही थी कि जिस दिन मदर्स डे था, जैसे आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बच्चों ने जो है बड़ी अपनी माओ के साथ सेल्फियां लगाई हुई हैं, ऐसे सेल्फी बना रहे हैं। और जैसे ही मदर डे खत्म होता है, दूसरा दिन आता है, तो माँ के पास कोई बच्चा नहीं होता, बिल्कुल सब भाग जाते हैं। सब भागते हैं। तो माँ के पास बैठे उनकी बातों को सुने, वो आपके लिए बरकत का बाइस बनेगी। उनकी स्ट्रगल को देखें। हम जब वो हमें नसीहत करती हैं तो हमें लगता है कि ये कोई फायदा नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनकी उम्र होती है जब वो हमसे बिछड़ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं, माँ मेरी ने है गल कही, ये बोला वो बोला। तो हमें तब तो ये चीजें याद आती है, लेकिन जब अब हमारे पास है तो हमें उन्हें जो है इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हम माओ को रिस्पेक्ट नहीं देते। हम समझते हैं बस उन्हें, उनके पास एजुकेशन नहीं है, अब उन्हें क्या पता है। तो आप सबको, जितने भी लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी पर, मैं स्पेशली नौजवानों से, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, तो जो है वो मेरी मालदा ने जो है बड़ी स्ट्रगल के साथ जो है आज इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद को अगर इस दुनिया में जाना जाता है तो बिल्कुल मेरी माँ की स्ट्रगल है। उन्होंने एजुकेशन दी मुझे। और फिर दूसरी बात, जब मैंने चर्च में आई, जब मैंने शाइन स्टार में खिदमत का आगाज किया, तो जिस्मानी माँ के साथ साथ मुझे रूहानी माँ भी मिली है, जो आप इन्हें इस टाइम देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी पर। माँ ने बहुत ज्यादा जो है हेल्प की, और जो मेरी स्पिरिचुअल मदर है मिसिज आसिया अशर, उन्होंने भी मुझे जो है रूहानी तौर पर बहुत ब्लेस किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अपनी दोनों माँओं की, जिस्मानी माँ की भी और रूहानी माँ की भी रिस्पेक्ट करें और उनसे मोहब्बत करें, और जरूर उन्हें आई लव यू बोले। आज जब आप इस शो को देखें तो अपनी माँओं को, जितने भी बच्चे अपनी माँओं के साथ बैठे हैं, और हम भी आपको कहते हैं आई लव यू। थैंक यू सो मच। और जितने आप सब लोग देख रहे हैं, आप भी अपनी माँ को कहें आई लव यू। सो गॉड ब्लेस यू। ओके जी, बिल्कुल हमें अपनी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और उन्हें आई लव यू कहना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि हम मदर्स डे वाले दिन अपनी माँ को आई लव यू कहें या उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनके लिए फूल लेकर आए। कुछ जो लोग हैं वो ड्रेसेस जो है अपने माँ बाप को गिफ्ट कर रहे होते हैं, और तरह तरह के गिफ्ट, और फूलों की दुकानों पे बड़े ही खूबसूरत जो है वो गुलदस्ते बन रहे हुए होते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि सिर्फ मदर डे वाले दिन नहीं अपनी माँ से या अपने बाप से मोहब्बत करनी, बल्कि हमें अपने वालिदैन से हमेशा मोहब्बत करते रहना है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप, जब हम बेसहारा होते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं, हमें अभी दुनिया का पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमारी केयर कर रहे होते हैं। इसी तरह जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह बचपन में वो हमें अपने गले से लगाते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं, बोसा लेते हैं, इसी तरह जब वो बुढ़ापे में चले जाएं तो हम भी उनका ख्याल रखें और उनको खाना पीना प्रोवाइड करें, उनको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए चीजें प्रोवाइड करें जिस तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा था। क्योंकि जब वो बुढ़ापे के अयाम में होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, तो उनको ये तमाम चीजें अपने लिए प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में भी दर्ज है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा, और जिस मुल्क में तू जाएगा, जहां पर तू रहेगा, तेरा क्या होगा, भला होगा। तो अगर नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी में भलाई को पसंद करती है, अपनी जिंदगी में भलाई चाहती है, तो जरूर है कि हम अपनी वालिदैन की अच्छे तरीके से टेक केयर करें, उनका अच्छा ख्याल रखें, बुढ़ापे में हम उनको खुशी प्रोवाइड करें। जब हम अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमारे माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए। मेरी बहनों में से अगर कोई सिस्टर आप कुछ इशार जो है वो इशार फरमाना चाहेंगे तो आप जरूर आप हमें। बहुत शुक्रिया। बड़ा ही माकूल मशहूर एक अकवाल है कि तुम मुझे अच्छी माँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छी माँ की बदौलत ही अच्छी कौम है, अच्छी बेटियां, अच्छे बेटे। बिल्कुल। और जहाँ ये लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बेटे की सराह पर तरबियत कर, तो वहाँ समझने की बात है कि बेटी की भी तरबियत की बहुत जरूरत है, औलाद की। और जिन बेटियों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होती है
तो वो अपने खुदा के बारे में जानती है कि किस कदर वो अजीम है, और फिर वो कभी किसी और के खुदा को अपना खुदा नहीं बनाती है। मैं तमाम लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, चंद अशार बयान करूंगी, और इसमें हम ये देखेंगे कि माँ ने किस तरह हमारी तरबियत की। जब हम दुनिया में आए तो हम क्या थी, हमारी हैसियत। कदर माँ की अगर तू जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ तो कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पांव भी तेरे तब तेरे न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। दूध पी के काम तेरा सोना ही था, तुझे आता सिर्फ रोना ही था। तुझको चलना सिखाया तेरी माँ ने, तुझको दिल में बसाया तेरी माँ ने। बहुत शुक्रिया सिस्टर। सिस्टर बहुत ही अच्छा आपने इशार पेश किए हैं, और अगर आप में से कोई मजीद व्यूअर्स के साथ कोई बात शेयर करना चाहे तो आप जरूर नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। जी सिस्टर, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मेरे अब्बू जो है ना वो यानी कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो मैं इस बात को सोच रही थी कि जब हम बहुत बुढ़ापे में भी चले जाते हैं तो हमें जरा सी भी कोई भी दुख और तकलीफ होती है तो हम क्या बोलते हैं, हर मुसीबत में हमारे मुंह से यही निकलता है कि माँ। बिल्कुल सबसे पहले जब भी हमें चोट भी लगती है तो देखिए ये कुदरती और खुदावंद की तरफ से है कि हमारे मुंह से फौरन माँ का ही निकलता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो है जब हम बुढ़ापे में भी जाते हैं, किसी दुख और मुसीबत में होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो माँ को याद। बिल्कुल, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अगर मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ूं तो इसमें जो है वो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूं दर्ज है, अगर तीतुस का खत और उसका दूसरा बाप और उसकी तीसरी आयत पढ़े तो इसमें यूं दर्ज है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मकदसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुतला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें। जब हमारे चर्च में अगर कोई बुजुर्गाएं हैं या छोटी बच्चियों से जो बड़ी जो औरतें हैं, जब हमारा किरदार अच्छा होता है तो फिर हमारी जो बच्चियां हैं वो भी हमसे क्या अच्छी बातें सीखती हैं, और फिर वो जब अपने घरों में जाती हैं वो अपने शोहरों का भी ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों का भी बेहतर तौर पर ख्याल रखती हैं। इसलिए जरूर है मेरी उन तमाम माओं के लिए जो कि हमारी दादी माएँ हैं या जो थोड़ी एजिड माएँ हैं, तो तमाम तर माओं से दरख्वास्त है कि अगर हमारा अपना चाल चलन अच्छा होगा तो उसका असर जो है वो हमारी बहू पे, हमारी बेटियों पे जरूर होगा, और फिर हमारी जो नस्ल है वो एक अच्छी नस्ल और एक अच्छी दुरुस्त नस्ल और एक दुरुस्त कौम जो है वो तैयार होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद के हुजूर अपनी तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करेंगे। कदूस कुदूस अजीम खुदा, आज के दिन के लिए हम तेरा बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। और आज आए खुदा मदर्स डे के हवाले से जब हमने माओं के हवाले से डिस्कशन की है तो आए खुदा मेरा ईमान है कि आज का कलाम, आज की बातें खुदा हर किसी के जहन दिल दिमाग में जड़ पकड़े और सोग न फैलाएं, और तेरा कलाम बढ़ता जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता जाए। और ऐ खुदा हमारे बच्चों को बरकत बख्श, अपने पाक कलाम के वसीला से हर शख्स को बरकत बख्श, माओं को दनाई की रूह अता फरमा ताकि तेरे मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक खुदा अपने बच्चों की तरबियत कर सके, चर्च में हम अपना अच्छा किरदार अदा कर सके ताकि हम आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत कर सके। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। शाइन स्टार देखने वालों को हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।